So today we are going to cover a fresh topic, and that topic name is known as multiple table DQL. Now, as of now, you have worked in the previous lecture from all those tables which are in quantity wise only one. Now, in this particular lecture, we are going to cover up how we can manipulate, how we can work with queries which have multiple tables. Okay, so in this we are going to cover the first heading, which is known as data from multiple tables, followed by simple join, compound join, then aliasing, aggregate functions, grouped aggregate functions. Then there is a new heading which is known as further filtering the groups. We will discuss that, and finally we will conclude that how you can execute a particular query, or what is the flow of execution of query. Okay, let's see one by one. Okay, so as of now we have seen data from single table. So basically we all are background, and we know in advance that it's not as simple as that we have only one table and we can select from that table only. No, side by side we have, I mean, most of the time we have this possibility that we can fetch data from multiple tables. Let's suppose I am going to fetch two columns p comma two tables. Let's suppose the first table is t1 and second table is t2. So there are two tables basically from which we are fetching the data. Okay, now term in DBMS which is known as normalization. आप सब लोगों ने पढ़ा होगा normalization, नहीं होगा तो in the coming weeks we are also going to cover this normalization if the time permits. And what is normalization? Normalization basically tells us how to reduce redundancy. The only motive of taking normalization is redundancy. और हम normalization को करते कैसे हैं? In normalization we are breaking the table, a single table which is very large, into multiple tables. अगर हम मल्टीपल टेबल्स हैं और हमें डेटा फैच करना है, सो वी नीड टू रिक्वायर्ड मल्टीपल टेबल्स टू फैच द डेटा. अगर मल्टीपल टेबल्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एसक्यूएल क्वेरी को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा. वी नीड टू आल्सो मॉडिफाई द एसक्यूएल क्वेरी सो दैट वी कैन गेट द desired information that we want to fetch from multiple tables. Okay, so basically what I'm going to explain that SQL जब हम multiple tables की terms में बात करते हैं तो बहुत complex हो जाता है. The structure of SQL query when we have multiple tables become little bit complex. Complex हो जाएगा तो efficiency के issues आने लगते हैं. So basically in my today's lecture we are going to sum up this lecture by taking how we can merge the tables and what sort of syntax we are going to follow for fetching the data when we have multiple tables. I guess the gist of the lecture is clear to each and everyone. So earlier in your last lecture, आपने ये एक syntax पढ़ा होगा, और basically what I'm going to tell you that the general structure of a query revisited. आप ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी. आपने select command पढ़ा होगा. Select में हम क्या करते हैं? Column 1, column 2. यहाँ पर हम multiple tables दे देते हैं, multiple column के नाम दे देते हैं. कहाँ से हमें fetch करना? That will go under my from section. Where is my constraint? Then we have order by, and then we have limit and offset. सबको ये पता होगा. अगर नहीं पता होता तो मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ. Where आपकी कंडीशन हो जाएगी कि आपको किस कंस्ट्रेंट के मुताबिक अपने डेटा को फैच करना है. ऑर्डर बाय बेसिकली आपके डेटा को क्या करेगा? अरेंज करेगा इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, बाय डिफॉल्ट द नेचर ऑफ डेटा विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलम विल बी विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, फॉलोड बाय लिमिट. लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है आपको जो रिजल्ट सेट मिला है उस रिजल्ट सेट में आपको कितनी एग्जैक्टली लिमिट का डेटा चाहिए. अगर आपके पास 2 लिखा हुआ है यहाँ पर और ऑफसेट भी आपका 2 है, दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में आपको क्या करना है? यू नीड टू रिमूव नेक्स्ट सब्सिक्वेंट tuples will be selected. So basically offset और limit आपने पढ़ा है. तो ये जो आपने structure पढ़ा था, this structure basically tells us that how we are going to fetch data from a single table. Now a problem क्या है? If we have multiple tables, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कॉमा करके, एक और टेबल लगा देता हूँ टेबल 2, या एक और कॉमा लगा देता हूँ टेबल 3, या ऐसे ब्ला ब्ला करके मेरे पास 6-7 टेबल है. अब मुझे क्या करना है? मेरा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो 6-7 टेबल को मिला के डेटा को फैच करेगी. सो व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू रीस्ट्रक्चर माय क्वेरी. आई वांट टू रीस्ट्रक्चर माय क्वेरी. सो the syntax of this query will be little bit
चेंज्ड, ठीक है। नाउ जब मल्टीपल टेबल्स की हम बात करते हैं, सो देयर इज अ एसक्यूएल इंटरप्रेटर। ये ज्यादातर बुक्स में लिखा नहीं होता है, लेकिन हम लोग इन्फीटीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल बाय द कंसेप्ट कि हमारी क्वेरी काम कैसे कर रही है, ठीक है। सो इंटरप्रेटर जिसका काम होता है टेबल्स को ज्वाइनिंग के टाइम पे एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करके देना। इफ वी हैव मल्टीपल टेबल्स एंड वी वांट टू ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स, सो एसक्यूएल इंटरप्रेटर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, इट विल गिव्स अस अ virtual table. It will gives us a virtual table, and after the table will be joined, then we will put some sort of clauses to get our further filtered answer. Okay, so in my next slide we are going to discuss two types of join, simple join and compound join. अब ये कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड सिंपल ज्वाइन क्या होता है, कंपाउंड ज्वाइन क्या होता है। हमने कैटेगरी ऐसे डिफाइन कर दी है कि अगर मेरे को क्लबिंग करके ज्वाइंस पढ़ने हैं तो मैं उसको कंपाउंड ज्वाइन की फॉर्म में बोल रहा हूं, और अगर मैं सिंगल सिंगल ज्वाइंस यूज कर रहा हूं अपनी क्वेरीज में, तो आई एम टेकिंग इट एज सिंपल ज्वाइन। इट्स अप टू यू, सिर्फ लर्निंग के पर्पज से मैंने यहाँ पर सिंपल ज्वाइन और कंपाउंड ज्वाइन के लिए डिफरेंशिएशन किया है। ओके, सो इन माई सिंपल ज्वाइन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रॉस ज्वाइन, we are going to discuss cross join, we are going to discuss natural join, if possible we are going to discuss Cartesian join. Okay, and then we are going to discuss outer join, which is divided into two categories, left outer and right outer, and then we will discuss full join. Okay, and in my compound join I am going to discuss clubbing of joins. Okay, let's see when times comes कि what is clubbing of join. So first of all we are going to start with simple join. What we are going to cover under simple join. Okay, now basically join आप सब लोग जानते हैं। अगर मेरे पास सपोज ये दो टेबल गिवन है, P गिवन है और Q गिवन है, और मुझे इन दोनों टेबल्स को मिला के इंफॉर्मेशन फैच करनी है, तो मेरे पास एसक्यूएल क्वेरी में सिर्फ एक ही प्रपोजल होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इन दो टेबल्स को ज्वाइन करूं, और उसके बाद फिर कुछ नेसेसरी कंडीशन लगाने के बाद देन आई अल्टीमेटली गेट माय सॉल्यूशन। ओके, सो बेसिकली द ज्वाइन क्लॉज क्रिएट्स अ वर्चुअल टेबल। ये वर्चुअल टेबल मैंने इसीलिए आपको बताया कि ज्वाइन क्लॉज क्या करता है, एक वर्चुअल टेबल बनाएगा बाय कंबाइनिंग टू टेबल्स जिससे हमें डेटा को पिक करना है, एंड द रूल टू कंबाइन द टू टेबल्स इज स्पेसिफाइड थ्रू द ऑन क्लॉज। आपने वेयर भी पढ़ा होगा, एंड देन यू हैव आल्सो गॉन थ्रू विद ऑन, ठीक है। तो वेयर और ऑन दे बोथ आर यूज फॉर कंडीशंस, जब आपने नॉर्मली यूज किया था सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल वेयर, लेट्स सपोज ये अगर कॉलम एज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पर मैंने वेयर रख दिया, वेयर रख दिया। तो यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन थी वो मेरी कौन सा कीवर्ड सक्सेसफुली प्रोवाइड कर रहा है, दैट विद द हेल्प ऑफ वेयर। अगर मैं ऑन क्लॉज की बात करूं तो ऑन भी सेम काम कर रहा है एज ऑफ वेयर, बट क्या करते हैं जब हम ज्वाइन बोलते हैं, जब हम ज्वाइन की बात करते हैं तो ज्वाइन के रिस्पेक्ट में हम वेयर को ना यूज करके ऑन को यूज कर लेते हैं, as simple as that. So I hope you all are clear with what is where and what is on. On is exactly the similar with where, both are used for constraints. Where is used for normal queries, and if I would say for joins I'm using a keyword and that is known as my on. Okay, so let's see. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस ज्वाइन की, ठीक है। अब क्रॉस ज्वाइन का जो सिंटेक्स है, अब देखो यहाँ पर आपको जो मैंने ब्लैक बोल्ड करके दिया है ये वाली लाइन, कॉलम 1 कॉलम 2 वेयर कंडीशन 1 एंड और कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ऑर्डर बाय आपने पता है, लिमिट भी पता है और ऑफसेट भी पता है। बस यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर जो मैं इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अब वो इंफॉर्मेशन एक टेबल से ना के दो टेबल के बेसिस पे मैं फैच करूँ। आई एम गोइंग टू फैच माय इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ टू टेबल्स। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यूज करता हूँ क्रॉस ज्वाइन। डीबीएमएस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप कोई किसी भी टाइप का ज्वाइन यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन यूज गो विद क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, व्हाटएवर यू वांट टू। लेकिन सारे ज्वाइन यूज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको वर्चुअल टेबल और उस पर कैसे कंस्ट्रेंट पुट करना है ये समझ में आ जाए, बिकॉज एवरी ज्वाइन इज बेसिकली डूइंग द सिमिलर काइंड ऑफ टास्क बाय ज्वाइनिंग द टू टेबल्स, बट एवरी ज्वाइन मस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम। अगर मैं क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन की बात कर रहा हूं तो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट ही करेंगे, लेकिन एक दूसरे बेसिस पे करेगा, एंड फर्स्ट वन इज यूजिंग सम अनदर वे, सो वी आर यूजिंग दिस क्रॉस ज्वाइन। सो आई होप यहां तक समझ में आ गया कि क्रॉस ज्वाइन is basically a simple join which basically combines two tables. Okay, now cross join does not require the on clause.
अब यहाँ पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्रॉस ज्वाइन के साथ हम ऑन यूज करें या ना करें। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन यूज करने की, इट डिपेंड्स अपॉन। अगर आप सिंपल क्रॉस ज्वाइन यूज कर रहे हो, इफ यू आर सिंपली यूजिंग क्रॉस ज्वाइन विदाउट ऑन क्लॉज, तो वो क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देगा। क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देगा। एंड इफ यू आर यूजिंग ऑन क्लोज, तो वो क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ऑन क्लोज को एप्लीकेबल करके फिर आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप क्रॉस ज्वाइन यूज कर रहे हो बिना ऑन क्लॉज के, सो दैट इज अ क्रॉस ज्वाइन सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। एंड इफ यू आर यूजिंग क्रॉस ज्वाइन विद ऑन क्लॉज, सो दैट इज इक्वल टू माई इनर ज्वाइन। तो अगर कहीं कहीं पर आप इनर ज्वाइन पढ़ते हो, if you are going through with inner join, it is nothing but it is equivalent to cross join plus on clause। अगर आपने क्वेरी एग्जैक्टली रन भी करी होगी, अगर आप इनर ज्वाइन लगाते हो या अगर आप क्रॉस ज्वाइन प्लस ऑन लगाते हो, दोनों ही केसेस में आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। इट मींस दोनों क्या कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ टास्क कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा कंफ्यूजन होता है कि इनर ज्वाइन के बैकएंड क्या है, तो इनर ज्वाइन इज नथिंग बट इट इज क्रॉस ज्वाइन प्लस ऑन। बट इफ आई हैव सेड ओनली क्रॉस ज्वाइन, दैट मींस इट इज ओनली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स, बट एट दैट टाइम इट विल नॉट बी काउंटेड एज इनर ज्वाइन। आई होप समझ आ गया सब। सो लेट्स सी, the virtual table created by cross join is the Cartesian product of each row of both the tables. This is the mandatory कि क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, क्रॉस ज्वाइन इज नथिंग बट इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ईच रो ऑफ बोथ द टेबल्स, एंड दिस ज्वाइन कॉपीज ऑल कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अभी जितने भी लोग आप हो क्लास के अंदर, सारे के सारे लोग एक्टिव मोड में आ जाओ। अगर आप लोगों को इस सिंटेक्स से क्लियर नहीं हो रहा, तो आई विल शो यू एन एग्जांपल कि बैकएंड पे क्रॉस ज्वाइन कैसे काम करता है। सो बी एक्टिव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट्स सी। अब जितने भी हम ज्वाइंस पढ़ेंगे आने वाले सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में, मैं दोनों टेबल यूज करूंगा, पी और क्यू, और उनके बेसिस में फिर आपको ज्वाइन लगा के दिखाऊंगा। देखो इनको बनाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि वर्चुअल टेबल कैसे काम कर रही है, वर्चुअल टेबल पे फिर एप्लीकेबल कंस्ट्रेंट कैसे काम कर रहे हैं, और उसके बाद क्या फाइनल रिजल्ट सेट आ रहा है। तो दैट मीन्स आप लोगों के पास एक चेन बनी रहे, सो दैट यू विल क्लियर ऑल विद योर ऑल कॉन्सेप्ट्स कि हाउ क्रॉस ज्वाइन इज गोइंग टू वर्क अपॉन। ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन हमने क्या बोला, क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पी क्रॉस ज्वाइन क्यू। स्टार का मतलब आई गेस आपको लास्ट क्लास में पता चल गया होगा। सेलेक्ट का क्या मतलब है, स्टार का मतलब ऑल द टपल्स इन वन गो। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल पी, और आई एम राइटिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल क्यू, इसका क्या मतलब होगा, इस केस में जो आउटपुट आएगा वो ये पूरी टेबल रिटर्न हो जाएगी, और इस केस में जो आउटपुट आएगा वो ये पूरी टेबल रिटर्न हो जाएगी। आई होप यहां तक सबको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज माय फ्रॉम पी क्रॉस ज्वाइन क्यू। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डॉट। यहाँ पर मैंने एक डॉट स्पेसिफाई किया है, सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है मैं रिकॉल कर देता हूं। दिस डॉट इज बेसिकली स्पेसिफाई द कॉलम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टेबल। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी टेबल्स हैं हमारे पास, उन बहुत सारी टेबल्स में बहुत सारे कॉलम सेम नाम के होते हैं। तो जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं तो उस टाइम हमारे पास बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा टेबल कौन सा कॉलम किस पर्टिकुलर टेबल का है। सो एट दैट टाइम डॉट ऑपरेटर स्पेसिफाइज दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर टेबल। तो यहाँ पर ये जो बी पी डॉट बी मैंने लिखा है, दिस बी कॉलम रिप्रेजेंट्स P table, this E column represents Q table, this C represents P table, यहाँ पर F column represents Q table. So I hope dot सबको clear है कि what is the significance of dot here. When we have multiple columns in different tables of same name, then it is very cumbersome to identify which column belongs to a which table. So dot specifies that particular column belongs to a particular table. ओके, सो लेट्स सी। अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेरी में सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, क्रॉस ज्वाइन निकालना है। अब क्रॉस ज्वाइन मैंने क्या बताया, क्रॉस ज्वाइन इज नथिंग बट इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ईच रो ऑफ बोथ द टेबल्स। अगर आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी, और जब हम आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी बताएंगे, तो आपको कोई भी क्वेरी को देखने के बाद, विजुलाइज करने के बाद आपको आइडियोलॉजी पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है। अगर मैथमेटिक्स है तो आप कार्टेशियन से निकाल सकते हैं, उस पर कंस्ट्रेंट आपको ऑलरेडी पता है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एसक्यूएल फॉर योर इनफीटीयू एग्जाम इन अ वेरी सूदिंग मैनर। क्योंकि आप लोगों ने शायद पेपर देखा होगा लास्ट ईयर का या नहीं देखा होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट
majority of questions if are coming from database, the majority of questions will only from SQL, and the maximum number of questions will be from joins. So that is the only way why we are main focusing on this join section. Okay, let's see. So अभी अगर मैं पी क्यू के पे क्रॉस ज्वाइन लगा रहा हूं, तो क्रॉस ज्वाइन का मतलब है सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इस पूरे टपल की मल्टीप्लिकेशन क्यू के पहले टपल से, इस पूरे क्यू के दूसरे टपल से, इस पूरे क्यू पी की टपल की मल्टीप्लिकेशन क्यू के इस पूरे टपल से। सिमिलरली रिवर्स, सिमिलरली एप्लीकेबल फॉर 41 एंड सिमिलरली एप्लीकेबल फॉर 12। सो अगर मैं पी और क्यू को इस वाले स्टेप की बात करता हूं, फ्रॉम पी क्रॉस ज्वाइन क्यू, इसका क्या मतलब हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले क्या निकलेगी, 11 12 80 31 12 13 23, then 11 12 80 31 31 16 and 14, 11 12 80 31 15 12 and 19. Similarly 41 23 92 15 41 23 92 15 31 16 and 14. Similarly 41 23 92 15 15 12 19. तो एटलीस्ट अगर मैं बात करता हूं फाइनल वर्चुअल टेबल की, सो दिस विल बी माय फाइनल वर्चुअल टेबल। यही आ रही है, 11 12 80 31 की मल्टीप्लिकेशन होगी क्यू के पहले टपल से, 12 13 एंड 23। सिमिलरली जो पी का पहला टपल है 11 12 80 31, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी क्यू के दूसरे टपल से, 31 16 14, 11 12 80 31, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी क्यू के थर्ड टपल से, 15 12 एंड 19। सिमिलरली फॉर दिस टपल एंड सिमिलरली फॉर दिस टपल। सो जब आप सेलेक्ट स्टार से पहले, अभी आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं पता, लेकिन सबसे पहले हम फ्रॉम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहां जाते हैं क्वेरी में, फ्रॉम पे। तो फ्रॉम में क्या लिखा हुआ है, पी क्रॉस ज्वाइन क्यू। तो सबसे पहले इस क्वेरी के अकॉर्डिंग इन दो होने के बाद ये वर्चुअल टेबल बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस ज्वाइन विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारी वर्चुअल टेबल बन गई, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ये वर्चुअल टेबल मुझे मिल गई, नेक्स्ट पार्ट मेरा बोल रहा है कंडीशन। अब फ्रॉम के बाद में वेयर पे आऊंगा। कंडीशन बोल रही है पी डॉट बी इज इक्वल टू क्यू डॉट ई एंड पी डॉट सी इज इक्वल टू 67 एंड क्यू डॉट एफ इज लेस देन 20। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। तो कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। ये क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन तो है कि जो बी कॉलम होगा पी टेबल का और जो ई कॉलम होगा क्यू टेबल का, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। चलो भाई देख लेते हैं, 12 है यहाँ पर और यहाँ पर है 13, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं जी, ये इक्वल नहीं है। पारुल सर ने आपको एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था, तो हम आगे चेक ही नहीं कर रहे, इसको फाइनल टेबल में नहीं रखेंगे। अब हम दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 16, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो इस टपल को भी हम कंसीडर नहीं करते। नाउ लेट्स कम टू दिस, 12 इज इक्वल टू 12, पहली कंडीशन मैच हो गई। देन वी विल गो टू पी डॉट सी कॉलम, सी कॉलम जो पी को बिलोंग कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 67। क्या यहाँ 67 है? नहीं, यहाँ तो वैल्यू है 80। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। जो आपका एसक्यूएल इंटरप्रेटर वो क्या करेगा, इसको भी डिस्कार्ड कर देगा। सिमिलरली 23 13 नो, 23 16 नो, 23 12 नहीं, 16 13 ये भी एप्लीकेबल नहीं है, 16 16 हाँ जी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। P डॉट सी इक्वल टू 67, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। एंड Q डॉट F इज लेस देन 20, is it 14? Yes, it is less than 20. Yes, so this will be picked up from the SQL interpreter. And finally 16 and 12 ये भी नहीं होगा। So the final result set will be this one. So 12 16 67 29 31 16 एंड 14। अब देखो क्रॉस ज्वाइन हमने बहुत बार पढ़ा है, हमने बहुत जल्दबाजी में पढ़ा है, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि बेसिकली क्रॉस ज्वाइन काम कैसे कर रहा है। तो अगर आपके दिमाग में ये विजुअलाइजेशन बैकएंड पे चल रहा है कि अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं और इस टाइप का ज्वाइन लगा हुआ है, पहले ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके बाद कंस्ट्रेंट होंगे, देन इट विल बी अ वेरी केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Okay, so I am forwarding to the next slide. The next category is known as Cartesian join. देखो Cartesian join
अब यहां पर एक सिंपल सी बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर बात हो रही है सेलेक्ट P कॉमा ए, बेसिकली यहां P कॉमा ए मैं कॉलम्स के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, P टेबल नहीं है ये, फ्रॉम टेबल T1 क्रॉस ज्वाइन टेबल T2, या इसका सब्स्टिट्यूट मैंने लिख दिया फ्रॉम T1 कॉमा T2, तो दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट है, T1 क्रॉस T2 और फ्रॉम T1 कॉमा T2। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी ज्वाइन का नाम नहीं लिख रहे हैं और दोनों टेबल के बीच में कॉमा लगा रहे हैं, तब भी वो इसको क्रॉस ज्वाइन ही डिपिक्ट करेगा। दैट मींस इस केस में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा और इस केस में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। सो अगर आपको कहीं पर भी ये दिखाई दे रहा है कि दो टेबल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस ज्वाइन, दैट मींस इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ cross join. So if we replace the cross join clause with a simple comma, it becomes a Cartesian join. Every other aspect of this join is the same as the cross join. तो अगर मेरे पास यहाँ दो टेबल हैं P और Q, जो मैं पुरानी टेबल को रेफर कर रहा हूँ, इस वाली टेबल को, तो यहां पर कोई भी रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट एग्जैक्टली रिमेन्स द सेम। अगर मैं इस क्वेरी को लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम P कॉमा Q, दैट मींस हम क्रॉस ज्वाइन की बात ही कर रहे हैं, बट वी आर टेलिंग इट एज कार्टेशियन ज्वाइन। यहां तक समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आया कि कॉमा लगाने से और क्रॉस ज्वाइन लगाने से क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं चेंज होगा, दोनों की टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको रिटर्न हो जाएगी। बेसिकली एक ऐसा ज्वाइन है जो किसी कॉमन कॉलम पे एप्लीकेबल होगा। अभी तक हमने क्रॉस ज्वाइन की बात की है, तो क्रॉस ज्वाइन में हम क्या कर रहे थे, कोई क्लॉज ही नहीं लगा रहे थे, तो क्रॉस ज्वाइन में तो सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो रहा था। नेचुरल ज्वाइन में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, नेचुरल ज्वाइन में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, लेकिन नेचुरल ज्वाइन साइड बाय साइड कुछ और भी कहता है। वो क्या कहता है, देखो ध्यान से, फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट। अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हर स्लाइड में कॉमन मिलेगी, जहां पर चेंज है वो मैं आपको बता रहा हूं। हम नेचुरल ज्वाइन प्रेफर कर रहे हैं फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन क्या कहता है, इट डज नॉट रिक्वायर ऑन क्लॉज, मत लगाइए आप ऑन क्लॉज, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन के साथ इनबिल्ट होता है। दैट मींस अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूं तो बैकएंड पे ये मुझे कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है, नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। अगर मेरे पास दो टेबल हैं, सपोज ये दो टेबल हैं, और इन दो टेबल के बीच में एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। अभी मैं एक और टेबल बना रहा हूं ए बी, और यहां एक और टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखना सारे लोग, यहां बना रहा हूं ए और सी, कुछ इस टाइप से मैंने दो टेबल बनाई। तो देखो यहां पर अगर मैं कहता हूं नेचुरल ज्वाइन ए नेचुरल ज्वाइन बी, ए नेचुरल ज्वाइन बी, अब इस वाली चीज पे आ जाओ, दिस ज्वाइन लुक्स फॉर अ कॉमन कॉलम टू अप्लाई ज्वाइन, दिस ज्वाइन लुक्स फॉर अ कॉमन कॉलम, मतलब सबसे पहली कंडीशन नेचुरल ज्वाइन की ये है कि अगर आप किन्हीं दो टेबल के बीच में नेचुरल ज्वाइन लगा रहे हैं तो दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होगा ही होगा। अगर वो कॉमन कॉलम नहीं है तो क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली क्रॉस ज्वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी चीज? दैट मीन्स अगर मैं यहां लिख रहा हूं ए नेचुरल ज्वाइन बी, अब इस सिनेरियो में देखो दो टेबल हैं, सॉरी मैं इसको A1 कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, और इसको मैं कर देता हूं B1 टेबल, ठीक है। तो A1 नेचुरल ज्वाइन B1, सो सी नेचुरल ज्वाइन लगाने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम होना ही है। अब इन दोनों के बीच में तो कॉमन कॉलम है ही नहीं, लेकिन मैं लिख नेचुरल जाऊं तो नेचुरल ज्वाइन ये नहीं कि इस वाले केस में एरर रिटर्न करेगा, वो एरर रिटर्न नहीं करेगा, वो रिटर्न करेगा इन दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो क्रॉस ज्वाइन में कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी वो यहाँ आपको मिल जाएगी। अगर अब मैं यहाँ बात कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं इस टेबल का नाम है A1 और इस टेबल का नाम है B1, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं A1 नेचुरल ज्वाइन B1। अब देखो इन दोनों टेबल के बीच में हमारी जो मिनिमम कंडीशन है कि एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, वो हमें मिल गया, वो हमें मिल गया। अब ये आगे मूव करते हैं। सो वर्चुअल टेबल इज क्रिएटेड बाय सेलेक्टिंग ओनली दोस टपल्स। अब इस केस की हम बात करें A1 नेचुरल ज्वाइन B1 व्हेन वी हैव अ कॉमन कॉलम। अब इस केस में कॉमन कॉलम मिल गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट
होगा ही होगा, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ एक और चीज होगी। क्या? वर्चुअल टेबल इज क्रिएटेड बाय सिलेक्टिंग ओनली दोस टपल्स फ्रॉम टेबल 1 and table 2 for which the value of the common column is equal. That means अगर मैंने यहां पर 10 लिखा है और अगर मैंने यहां पर लिखा है 11, that means again it is the violation of my natural join. क्यों? कॉलम का तो नाम सेम हो गया, लेकिन क्या होगा? कॉमन वैल्यूज नहीं आ रही हैं। ठीक है, so that means अगर यहां पर है 10 10, now it is perfectly all right to open natural join on these two tables because we have A1, B1, name of the column is same and value of the common column is also equal. तो ज्वाइनिंग कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई कि दोनों टेबल्स के बीच में कॉलम का नाम भी कॉमन होना चाहिए और उन कॉमन कॉलम के बीच की जो वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए। इफ अ कॉलम कॉमन इज नॉट फाउंड, दिस ज्वाइन बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक द क्रॉस ज्वाइन, जैसे मैंने आपको बताया। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज और हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम कॉपी करते हैं कॉलम्स को फ्रॉम बोथ द टेबल्स, सो इट विल ओनली कीप, तो हमने 3-4 कंसेप्ट यहां से पढ़े कि नेचुरल ज्वाइन तभी वर्क करेगा जब कॉमन कॉलम होगा। अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली क्रॉस ज्वाइन की तरह बिहेव करने लगेगा। उस टाइम आपको जो वर्चुअल टेबल मिलेगी, इट इज सिंपली अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेचुरल ज्वाइन लगाने के लिए नेसेसरी कंडीशन विल बी कॉमन कॉलम प्लस the value of the common column must also be equal, and side by side only a single copy of the common column will also be returned. एक example देख लेते हैं and then let's take the queries if you have any. Let's see. So यहाँ पर सेम P और Q नाम की दो टेबल्स हैं, P नाम की टेबल है और एक Q नाम की टेबल है। नेचुरल ज्वाइन लगा रहे हैं तो कैसे चलेगा? नेचुरल ज्वाइन की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है कि नेचुरल ज्वाइन इज एप्लीकेबल इफ इन बोथ द टेबल्स वी हैव अ कॉमन कॉलम। क्या इन दोनों टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम है? हाँ जी है, P में D है और Q में भी D है। चलो, कॉमन का नाम तो हो गया कॉलम। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों कॉमन कॉलम्स में वैल्यूज भी कुछ इक्वल्स होनी चाहिए, तभी ज्वाइनिंग पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या बात करते हैं? 11 कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो गई, देखते हैं 11 12 80 31 12 13 23। पॉसिबल ही नहीं है ये। क्यों नहीं है पॉसिबल? यहां पर डी की वैल्यू है 31 और यहां पर है डी की वैल्यू 12। अगर कॉमन कॉलम ही नहीं है तो ये ज्वाइनिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं लिखता हूं 11 12 80 31 31 जस्ट अ मिनट 31 16 and 14. It is applicable. Yes, it is applicable. Why? Because in both the columns we have a common value and that value is 31. That value is 31. So this can be picked up. Now 11, 12, 80, 31, 15 is very, very clear because there is no common value between both the common columns. Now 41, 23, 92, 15, 12, 13, 23, it is not applicable. 41, 23, 92, 15, 31, 16, 14, it is also not applicable. 41, 23, 19, 15, 12 and 19, it is applicable. अब हम बात करते हैं इस वाले टपल की। 12, 16, 67, 29, दैट मीन्स इसके साथ किसी भी टपल का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो कॉमन वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ वो एक चीज और बोल रहा है। क्या बोल रहा है नेचुरल ज्वाइन ये बोल रहा है कि जो कॉमन कॉलम्स होंगे उनकी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। दैट मीन्स ओनली अ सिंगल कॉपी विल बी रिटेन। दैट मीन्स 31 15, सॉरी इसको हटा देते हैं, 31 31 15 एंड 15, दैट मीन्स 31 15 ये वाला कॉलम और 31 15 ये वाला कॉलम, दे बोथ आर कॉमन। इनकी एक सिंगल कॉपी ही कंटेन होगी, तो जो फाइनल वर्चुअल टेबल बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, 11 12 80 दोनों का कॉमन, 31 16 14 41 23 92 दोनों से कॉमन, फिफ्थ माय नेचुरल ज्वाइन। यहां तक सबको समझ में आ गया वर्चुअल टेबल नेचुरल ज्वाइन की कैसे बनी? नाउ लेट्स सी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेरी। अब दूसरी चीज क्या है? वेयर कंडीशन, जहां पर सी कॉलम की, जो सी कॉलम है पी टेबल का, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए एंड क्यू डॉट एफ इज लेस देन 20। सो
P डॉट सी इज ग्रेटर देन 80, नहीं जी वो तो इक्वल है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। P dot C is greater than 80, yes, 92 is greater than 80, and Q dot F is less than 20, हाँ जी it is applicable, so the final result set will be this one. This is my natural join. Okay, so I am considering natural join is clear to each and every individual of this class. Okay, now next is my left join. From table 1 left join table 2, and on table 1 dot column name is column 1 is equal to table 2 dot column 1. Basically ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हो, अगर मुझे P और Q पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, देयर इज अ टेबल P एंड देयर इज अ टेबल Q, सो लेफ्ट ज्वाइन सबसे पहले आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी टेबल है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टेबल है P और राइट हैंड साइड में हमारे पास टेबल है Q। तो जो लेफ्ट वाली टेबल होगी उसके सारे टपल्स आएंगे, लेफ्ट वाले टेबल के सारे टपल्स आएंगे, और राइट वाले टेबल के सिर्फ वही टपल आएंगे जहां पर मैचिंग हो रही होगी, जहां पर मैचिंग हो रही होगी। लेट्स सी वन बाय वन। आई थिंक सिंटेक्स तो सबको क्लियर ही होगा कि फ्रॉम यूज करना है। फ्रॉम में हमने लगाया लेफ्ट ज्वाइन फॉलोड बाय ऑन क्लॉज, एंड ऑन क्लॉज इज बेसिकली इक्वालिटी। ओके, लेट्स सी नाउ इन द केस ऑफ लेफ्ट ज्वाइन इट इज मैंडेटरी टू पुट ऑन क्लॉज। अभी तक हमने नेचुरल ज्वाइन की बात करी है, अभी तक हमने क्रॉस ज्वाइन की बात करी है, अभी तक हमने कार्टेशियन ज्वाइन की बात करी है। तो क्रॉस ज्वाइन के अंदर हमने कहा डज नॉट रिक्वायर, जरूरत नहीं है। अगर आप क्रॉस ज्वाइन निकाल रहे हो तो सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ऑन क्लॉज लगा दोगे तो बाइफर्केशन के बाद वो इनर ज्वाइन बन जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन ज्वाइन में हमने क्या देखा था, कॉमा लगाएंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर ज्वाइन में। नेचुरल ज्वाइन में इनबिल्ट ऑन होता है, उसमें भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों टेबल के बीच में कॉमन कॉलम होगा और उन कॉलम के बीच में जो सेल्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ लेफ्ट ज्वाइन इट इज मैंडेटरी टू पुट ऑन क्लॉज। नाउ वर्चुअल टेबल कैसे बनेगी, वर्चुअल टेबल इज पिकिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, जैसे कि मैंने अभी बोला ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल प्लस मैच्ड वैल्यूज फ्रॉम द राइट टेबल, और नल इन केस ऑफ नो मैच। अभी तक हमने नल की बात नहीं करी थी। लेफ्ट ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन है जिसमें हम नल भी हमें मिलेगा, और नल इन केस ऑफ नो मैच। टू टपल्स आर सेट टू बी मैचिंग इफ द वैल्यू ऑफ द कॉमन कॉलम is the same. समझ आ रही है? Two tuples are said to be matching if the value of the common column, table 1 column name, table 2 column name is the same. Okay, copies all columns from both the tables, copies both the copies of the common column. अब देखो यहां पर डिफरेंस है लेफ्ट ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में। नेचुरल ज्वाइन में ज्वाइनिंग के बाद जो वर्चुअल टेबल बनेगी उस टेबल में सिर्फ एक ही कॉमन कॉलम की सिंगल कॉपी आएगी, लेकिन लेफ्ट ज्वाइन के अंदर जो कॉमन कॉलम होगा वो दोनों टेबल्स का इकट्ठा होगा। दैट मींस कीप्स बोथ द कॉपीज ऑफ द कॉमन कॉलम। तो P का अगर कोई कॉमन कॉलम है वो भी आएगा, और Q का अगर कोई कॉमन कॉलम है तो वो भी, द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज माई लेफ्ट ज्वाइन ऑन P डॉट D इज इक्वल टू Q डॉट D। सो टेबल क्या बननी चाहिए, 11 12 सारे टपल्स आएंगे, 41 23, मुझे सोचना नहीं है, मैं सारी की सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ, 12 16 67 29। मैं अगेन अगर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको मैथमेटिक्स ज्वाइंस की क्लियर है तो जितनी भी आप एसक्यूएल क्वेरीज लगाने वाले हो बहुत सिंपल हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा। 11 12 80 31 41 23 92 15 12 16 67 29। ठीक है, अब 11 12 80 31 31 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कॉमन होना चाहिए बताओ, 31, यही कॉमन होगा, 31 16 14। सिमिलरली फॉर 43 29 92, तो जो फाइनल टेबल हमारी बनेगी विल बी लाइक दिस। देखो 11 12 80 31 31 16 14, अब 41, अब 11 12 80 31 की मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले भी 12 13 23, कोई कॉमन कॉलम नहीं है, कॉमन वैल्यू नहीं है, तो हम इसको कर देंगे सेट को नेग्लेक्ट। सिमिलरली 11 12 80 31 31 16 14, हाँ जी। अब देखो जो वर्चुअल टेबल बन रही है उसमें 31 की दो कॉपीज बनी है, इस वाले सेल में 31 है और इस वाले सेल में भी 31 है। व्हाई इज इट सो, बिकॉज नेचुरल ज्वाइन अलाउज टू सस्टेन और टू कीप बोथ द कॉपीज ऑफ द फ्रॉम बोथ द टेबल्स। यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, एक P डॉट D और एक Q डॉट D। नेचुरल लेफ्ट ज्वाइन है, दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग टू वैल्यूज। ठीक है, नाउ सिमिलरली 41 23 92 15 15 12 19। अब देखो 29 के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी
एप्लीकेबल वैल्यूज नहीं है, सो दे ऑल विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ नल। यही हमने यहाँ देखा था। क्या देखा था? Virtual table is created by picking all the values from the left table plus matched values from the right table, or null in case of no match. So I hope the logic is clear. अब हम इस पे condition लगा देते हैं कि P dot C must be greater than 79 and Q dot F must be less than 20. कहाँ पर applicable है? This P dot C is greater than 79. Very good. हाँ जी है. Q dot F is less than 14. हाँ जी है. 92 भी बड़ा है, हाँ जी है. 19 is less than, yes. So the final result set will be my these two tuples in the final result table. मैम समझ आ गया लेफ्ट ज्वाइन? अब राइट ज्वाइन लेफ्ट का ऑपोजिट होता है. इसमें क्या होगा? इसमें जो अगर मैं P Q की बात करता हूं तो जो टेबल लेफ्ट में है कौन सी है? P, और कौन सी टेबल राइट में है? Q. तो जो राइट टेबल होंगे उसके सारे टपल्स आ जाएंगे, और जो लेफ्ट की जो मैचिंग वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी, प्लस नल वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, तो will not work without the on clause. Virtual table is created by picking all the values from the right table plus matched values from the left table, or null in case of no match. Two tuples are said to be matching if the value of the common column is the same, copies all columns from both the tables, keeps both the copies of the common column. ठीक है, राइट ज्वाइन के अंदर भी डुप्लीकेसी होगी. लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल. राइट ज्वाइन लगाया तो क्या होगा? राइट में कौन सी टेबल है? पहले वाले फ्रॉम पार्ट पे जाएंगे, देखेंगे P राइट ज्वाइन Q. राइट में कौन सी है? Q टेबल, और लेफ्ट में कौन सी है? P टेबल. लेकिन राइट ज्वाइन लगाना है तो Q के सारे टपल्स आएंगे. दैट मींस 12, 13, 23, 31, 16, 14, 15, 12, 19. कॉमन कहाँ कहाँ है? 12 के साथ कुछ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में सब नल वैल्यूज हो जाएंगी. 31 के साथ कहीं मैच हो रहा है? हाँ जी हो रहा है. 31, 16 एंड 14. क्या 15 के रेस्पेक्ट में कुछ मैच हो रहा है? हाँ जी हो रहा है. 15, 12 एंड 19. सो द फाइनल टेबल विल बी दिस वन. ठीक है, 11, 12, 80, 31, 31, 16, 14, 41, 23, 92, 15, 15, 12, 19. In the case of this null, 12, 13, 23. देखो राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन नाम सुन के लग रहा है कि जो हम मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं कि सिमिलर काइंड का टास्क ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगा, दैट जो वर्चुअल टेबल बनेगी बेसिकली, दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट. दोनों के केस में डिफरेंट है. लेफ्ट ज्वाइन के केस में कुछ और आई थी और राइट ज्वाइन के केस में कुछ और आई थी. और सिमिलरली अब हमें क्या करना है? अपना कंस्ट्रेंट पुट करना है. P dot C is greater than 79 और Q dot F is less than 20. So finally these two tuples will be result and final solution will be this one. राइट ज्वाइन समझ में आ गया. और जैसा भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर ऑन क्लॉज नहीं है तो राइट ज्वाइन परफॉर्म करेगा सिंपल क्रॉस ज्वाइन. द फाइनल इज फुल, और फुल ज्वाइन बोल सकते हैं, कभी कभी इसको राइट फुल आउटर ज्वाइन भी बोल देते हैं. तो कहीं पे अगर आपको फुल ज्वाइन दिखाई दे रहा है या आपको कहीं पर फुल आउटर ज्वाइन दिखाई दे रहा है तो कंफ्यूज मत होना, एक ही ज्वाइन के बारे की बात चल रही है. ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं. ये करता क्या है बेसिकली, यहाँ हम इसको पढ़ लेते हैं. सिंटेक्स इसका ये है: फ्रॉम टेबल 1 फुल ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू इक्वालिटी की कंडीशन विल नॉट वर्क विदाउट द ऑन क्लॉज. ये मैंडेटरी पार्ट है. ठीक है, ऑन क्लॉज लगाना मैंडेटरी है. पहले बता देता हूँ, अगर आप ऑन नहीं लगाओगे तो क्रॉस ज्वाइन की कैटेगरी में चला जाएगा. सब कुछ क्रॉस ज्वाइन है, कुछ नहीं है उसके अलावा. कंडीशन लगाओगे तभी वो इंडिपेंडेंट ज्वाइन की तरह वर्क करेगा. नाउ द ज्वाइन टेबल विल कंटेन ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स. Mark my words, the joint table जो virtual table बनेगा will contain all tuples from both the tables with null for missing matches on either side. Two tuples are said to be matching if the value of the common column is the same, copies all columns from both the tables and keep both the copies of the common column. अब देखो यहाँ पर 11, 12, 80, 31 फाइनल टेबल ही दिखा देता हूँ. 11, 12, 80, 31 क्या बोला गया था? सबसे पहले देखो, joint table will contain all tuples from both the tables. That means 11, 12, 80, 31, 41, 23, 92, 15, 12, 60, 16, 67, 29. लेफ्ट वाली टेबल के सारे टपल्स आ गए. क्या बोला गया है? राइट वाली टेबल के भी सारे टपल. देखो 31, 16, 14, 15, 12, 19, 12, 13, 23.
ठीक है, कॉमन होगा तभी मर्जिंग हो रही है, 31 31 15 15, जहां पर मर्जिंग नहीं हो रही है इट विल बी रिटर्न एज नल। आई होप ये तो सबसे सिंपल है कि पहले दोनों टेबल्स के सारे सारे टपल्स और जहां जहां कॉमन आएगा वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, जहां नहीं है एंट्रीज दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज माय नल, एंड आफ्टर पुटिंग द कंस्ट्रेंट द फाइनल सॉल्यूशन विल बी दिस वन। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो टाइप करो यस, नहीं आया तो रेज द क्वेश्चंस, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम मूव कर रहे हैं। ओके वेरी गुड, द आंसर करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, अब देख लेते हैं जिस जिसको नहीं समझ में आया कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तीन स्कीमा, एक है सप्लायर नाम का टेबल, एक है पार्ट्स नाम का टेबल और एक है कैटलॉग नाम का टेबल। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राइट अ क्वेरी टू फैच द सप्लायर आईडी ऑफ दोज सप्लायर्स हु आर सप्लाइंग एटलीस्ट टू पार्ट्स। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसने आंसर दिया है वेल एंड गुड, वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है आंसर्स आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि वो किस किस टेबल से आपसे आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, राइट ए क्वेरी टू फेच द सप्लायर आईडी ऑफ दो सप्लायर्स हु आर सप्लाइंग एटलीस्ट टू पार्ट्स, हु आर सप्लाइंग एटलीस्ट टू पार्ट्स। ठीक है, तो सप्लायर आईडी भी चाहिए और पार्ट्स भी चाहिए, तो हम पार्ट्स आईडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो सप्लायर और पार्ट्स, इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हो सकती है? नहीं, कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है या कॉमन कॉलम नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो ज्वाइनिंग होगी वो दो टेबल्स के बीच में होगी, सप्लायर टेबल के बीच में और कैटालॉग टेबल के बीच में। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इन दोनों टेबल्स के बीच में एक कॉमन पार्ट है। मैं पूरा टेबल नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ सप्लायर आईडी यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ सप्लायर आईडी लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सप्लायर आईडी, सपोज इस टाइप से। ठीक है, अब हम ऑप्शंस की तरफ मुड़ते हैं। इन्होंने कहा राइट अ क्वेरी टू फैच द सप्लायर आईडी ऑफ दो सप्लायर्स हु आर सप्लाइंग एटलीस्ट टू पार्ट्स। तो पहली बात तो डी देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि हमें क्या करना है, इंडिविजुअल, अगर एक एक सोचने वाली बात है कि अगर एक टेबल में बहुत सारे ऐसे एक ही कस्टमर है जो बहुत सारे पार्ट्स को बेच रहा है, सो हमें मतलब एक पार्ट बहुत सारे कस्टमर्स बेच रहे हैं, तो इन दैट केस वी नीड अ वेरी प्रिसाइज सोल्यूशन। ठीक है, सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट C1 डॉट सप्लाई आईडी फ्रॉम कैटलॉग C1 इनर जॉइन कैटलॉग 2। तो ये वाली कंडीशन है नॉट इक्वालिटी की, तो किसी भी केस में ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम इनर जॉइन लगा रहे हैं और इनर जॉइन तभी लगाएगा जब दोनों टेबल्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ तो हमने लगा दिया नॉट इक्वालिटी, यहाँ पर भी हमने लगा दिया नॉट इक्वालिटी, तो ये तो हमने बाहर कर दिए। अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखो, select distinct C1 dot supply ID from catalog C1 inner join catalog C2 on C1 dot supply ID is equal to C1 dot supply ID। यहां तक तो मेरी क्वेरी है बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं है इस क्वेरी में, लेकिन जो एंड क्लॉज लिखा है वहां पर है इक्वालिटी। दैट मींस अगर कैटलॉग की टेबल में कुछ इस टाइप का है, सप्लायर वन सप्लायर वन, ये सप्लायर वन कर रहा है P1 और ये सप्लायर वन कर रहा है P2। दैट मींस अगर मैं इक्वालिटी की कंडीशन लगा दूंगा तो वो हमेशा क्या करेगा, S1 के रिलेटेड जो P1 नाम का प्रोडक्ट है वही रिटर्न कर देगा। दैट मींस इक्वल टू भी नहीं चलेगा, क्योंकि पूछा है हु आर सप्लाइंग एटलीस्ट टू पार्ट्स, हु आर सप्लाइंग एटलीस्ट टू पार्ट्स। दैट मींस द मोस्ट फेवरेबल आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज दिस नॉट इक्वालिटी satisfied our condition for fetching the supplier ID of those suppliers who are supplying at least two parts. I hope तो हमें करना है write a query to fetch the supplier ID of those suppliers who are supplying at least two parts. Yes, exactly, very correct. So we are going to have catalog with catalog. Yes, exactly. We are going to have catalog with catalog. So select distinct C1 dot supply ID from catalog C1 inner join. That means हमने क्या करना है, हमने एक ही टेबल के ऊपर उसके साथ दूसरा इनर जॉइन लगा दिया। तो इनर जॉइन में क्या होगा, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, उसके बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई द ऑन क्लॉज एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर। लॉजिक तो वही रहेगा। ठीक है, ठीक है। सो मल्टीपल ज्वाइन स्टेटमेंट्स कैन बी क्लब टू क्रिएट कंपाउंड ज्वाइन स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड अबाउट सच कंपाउंड ज्वाइन स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिंपल सी एक लॉजिक है, देखो यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टैब 1 ज्वाइन टाइप, टैब 2 ज्वाइन टाइप, टैब 3। दैट मींस अगर आपके पास कुछ इस टाइप का है, यहाँ मैं इसको क्वेरी में कन्वर्ट कर देता हूँ, फ्रॉम ए टेबल, यहाँ लिख देता हूँ मैं इनर ज्वाइन। ठीक है, कुछ कंडीशन होगी, इनर ज्वाइन बी ऑन क्लॉज के साथ, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ सपोज यहाँ क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन सी, कुछ इस टाइप से लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर
इस टाइप की क्वेरी को या इस टाइप के ज्वाइन को मैं कंपाउंड ज्वाइन की कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर चाहिए कि जो वर्चुअल टेबल बनेगी कंपाउंड ज्वाइन के केस में इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा कैसे बनेगी? लेफ्ट टू राइट। दैट मीन सबसे पहले ए इनर ज्वाइन बी एप्लीकेबल होगा और इनकी जो वर्चुअल टेबल आएगी, इनकी जो वर्चुअल टेबल आएगी उसके साथ क्रॉस ज्वाइन होगा सी का, उसके साथ क्रॉस ज्वाइन होगा सी का। बस यही इसका एक जिस्ट है कंपाउंड ज्वाइन यूज करते वक्त, यही आपको याद रखना है। क्या करना है? वर्चुअल टेबल इज क्रिएटेड बाय प्रोसेसिंग द ज्वाइन क्लॉज टू ज्वाइन टाइप टाइप 3। और एग्जीक्यूट कैसे होगा? जो सबसे पहले लेफ्ट में आपका ज्वाइन होगा उसकी वर्चुअल टेबल के कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्या करना है? नेक्स्ट ज्वाइन को फॉरवर्ड करना है। मल्टीपल कंडीशंस कैन बी स्पेसिफाइड विद ऑन और वेयर क्लॉज एंड द रोज व्हिच डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस आर ड्रॉप फ्रॉम द वर्चुअल टेबल। जो नॉर्मल आपने ज्वाइंस पढ़े हैं उन्हीं की बेसिस पे हम कंपाउंड ज्वाइन को एग्जीक्यूट करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बहुत सारे ज्वाइन एक ही क्वेरी में हो तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा? एग्जीक्यूशन विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑन एंड वेयर आर इंटरचेबल नॉट जस्ट इन द कंटेक्स्ट बट समवेयर एल्स टू। मैंने आपको बता दिया था कि ऑन और वेयर कहां करते हैं। बेसिकली ज्वाइन के साथ ऑन क्लॉज यूज होता है और नॉर्मल कंडीशंस के साथ क्या यूज होगा? वेयर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम इज एलाइजिंग। इसको जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एलाइजिंग का मतलब, for the sake of readability of complicated queries, column and table names can be given short aliases using the as clause or simply white space will also work. देखो, aliases are temporary and exist only for the duration of the query. Simple है, अगर आप ये कॉलम नाम बहुत बड़ा है, सपोज आपने लिखा कॉलम का नाम सेलेक्ट रामाकृष्ण मूर्ति, ऐसा कोई कॉलम का नाम है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो आप इसका एलाइज भी बना सकते हो एज R1 सिंपल, या सेलेक्ट रामाकृष्ण मूर्ति व्हाइट स्पेस देखे R1। ये दोनों ही सिंटेक्स एप्लीकेबल हैंगे एलाइजिंग के टाइम पर। तो नाम भी एलाइज कर सकते हो और टेबल का नाम भी एलाइज कर सकते हो। टेबल 1 एज एलाइज 3 फुल ज्वाइन लगाया, टेबल 2 एज एलाइज 4। या दूसरा सिंटेक्स है कि अगर आपने एज कीवर्ड यूज नहीं किया, इफ यू आर नॉट यूजिंग एज कीवर्ड, तो सिंपल एक व्हाइट स्पेस लगाने के बाद भी एलाइज यूज कर सकते हो। दैट मीन्स दोनों syntax are applicable, both the syntax are applicable for aliasing my column name and table name. समझ में आ गया यहाँ? The final answer is 1 and 2. Okay. So Very again, good. I think the answers, the explanation which the student has given is satisfactory. सबको समझ में आ गया होगा. So without wasting any more time, let's move to the next topic, which is my aggregate functions. एग्रीगेट फंक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जितनी भी आपको क्वेरीज मिलेंगी, 5 क्वेरी अगर आपके पेपर में आ रही है तो कम से कम 2 क्वेरी के अंदर अंदर कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन उन्होंने लगाया होगा। ठीक है। तो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन करते क्या है? जो भी आपके मैथमेटिक रूटीन वेजेस हैं, जैसे कि आपको एग्रीगेट वैल्यूज निकालना है, या आपको एवरेज निकालना है, या आपको मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो एट दैट टाइम वी हैव सुटेबल एग्रीगेट फंक्शंस टू डू आवर टास्क। ओके, लेट्स सी। सो एग्रीगेट फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या है? सेलेक्ट के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन लगाओगे और उसके साथ आपको एक पैरेंथेसिस मिलेगा। उस पैरेंथेसिस के अंदर आपको कॉलम नेम लगाना पड़ेगा, किस कॉलम नेम के ऊपर आपको एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। ठीक है। नाउ एग्रीगेट फंक्शन लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा? द अबव स्टेटमेंट will apply the aggregate function over the column and will return a single value। ठीक है। अब आप लोगों ने जो ये क्वेरी देखी है, इस क्वेरी में से मैंने 2 पार्ट इरेडिकेट कर दिए। एक तो मैंने कर दिया ऑर्डर बाई, हटा दिया, और एक मैंने हटा दिया लिमिट और ऑफसेट। ठीक है। तो जब हम एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं तो इन 2 क्लॉजेस का या इन 3 क्लॉजेस का यूज करना कोई फ्रूटफुल डिसीजन नहीं है। क्यों हम बेकार में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करें? क्यों भाई? जब मैं कह रहा हूं कि जो एग्रीगेट फंक्शन है वो एक सिंगल कॉलम पे लगेगा और सिंगल कॉलम क्या करेगा? एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आप देखो, अगर सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है, अगर सिंगल वैल्यू ही रिटर्न हो रही है तो ऑर्डर बाय लगाने का क्या लॉजिक बनता है? असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल आंसर है। ठीक है। लिमिट ऑफसेट भी आप लोगों को पता है कि कितनी रोज हमें एलिमिनेट करनी है और कितनी रोज हमें फैच करनी है, तो वो करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से मैंने एग्रीगेट फंक्शन के साथ ऑर्डर बाय लिमिट ऑफसेट को हटा दिया। मतलब दे आर नॉट फ्रूटफुल ऑल टुगेदर, एज सिंपल एज दैट। ओके। Now in my DBMS, the most common aggregate functions are count. It counts the number of rows in the group, minimum column,
finds the smallest numerical value in the specified column for all the rows in the group. Maximum column finds the largest numerical value in the specified column for all the rows in the group. Average calculate करेगा. Sum will calculate the sum of all the numerical values in the specified column for the rows in the group. So these are my 5 aggregate functions which we are going to use in my SQL. समझ में आ गया aggregate function क्या कर रहे हैं? Basically mathematical calculations ही perform कर रहे हैं over the columns. देखो सिंपल से क्वेश्चन है. व्हाट इज आउटपुट ऑफ द क्वेरी? सेलेक्ट फ्रॉम पी क्रॉस ज्वाइन. तो सबसे पहले हम फ्रॉम पे जाते हैं. कहां से सिलेक्ट करना है? पी क्रॉस ज्वाइन क्यू. तो क्रॉस ज्वाइन से समझ में आ गया दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा. बना लो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या होगा? 11 12 80 31 12 13 23 11 12 80 31 31 16 और 14 11 12 80 31 15 12 और 19. ठीक है. 41 23 92 15 12 13 23 41 23 92 15 31 16 and 14. Similarly 41 23 19. अब लास्ट वाले टपल के लिए चलेंगे. 12 16 67 29 12 13 23 31 सॉरी 12 16 67 29 31 16 14 12 16 67 29 15 12 19. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया. कंडीशन क्या बोल रही है? वेयर पी डॉट सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80. अब इसमें सी क्या है? ए बी एंड सी. दैट मीन्स कौन कौन से सिलेक्ट हो जाएंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 80. एक तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 80. ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा. और बाकी 67 इनको हम कर देंगे डिस्कार्ड. उसके बाद क्या बोला है? सम क्यू डॉट डी. सम, अब फ्रॉम चल गया, वेयर हो गया. अब हम एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे. सम क्यू डॉट डी ए बी सी डी. कैलकुलेट कर लेंगे. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. तो जिसने भी आंसर डी दिया है, योर चॉइस इज करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज 116.